Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. Fab Talks is so happy to connect with our celebrity guests. And today is a special day because we are connecting with our guest who had earlier shared her time with us on the International Fab Talks. That is, she shared her time with us last year, and today she's here again with us. She promised us to join us once again on the Fab Talks to share her success story. So once again, we would like to invite her and enjoy the session with her, get to learn the resilience path that she has till date and how she's taking it forward. What we can learn from our celebrity guest today. She is a young girl and she's joining us all the way from Kolkata, West Bengal, India. She's none other than Pampa Das. She's focused on bringing about a beautiful change in her own life and the people around her. Let's get to know more about her journey, my dear friends. Join us to welcome our celebrity guest. She's none other than Pampa Das. Hello, ma'am, and welcome to the session. बहुत बहुत धन्यवाद. आप दोबारा हमारे मंच पर आई है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैम. मैं आपका प्रोफाइल शेयर करके उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे. ओके मैम। Yes, dear. Thank you, ma'am. So, dear friends, I'd love to share the profiles of all our celebrity guests. And today we have with us, as I earlier mentioned, she is none other than Pampa Das. I just give a briefing about who is Pampa Das and what does she do. She is an acid attack survivor. She's been surviving this attack. The first attack took place in the year 2017. That is October 23rd, 2017. She was attacked with acid, and who has done that to her? She will share that during this course. We'll get to know more about it and how she overcame the challenges and how she has a smile on her face today and putting smiles across everybody's face also. She's doing that great job. Presently, she's working as an e-commerce assistant and a cluster treasurer. Let me put that right. Pampa Das is working as an e-commerce assistant and a cluster treasurer in Kolkata, West Bengal, India. Let's get to know more about her journey and celebrate her life. You know what I like about this young lady? Full of energy, full of love and compassion. She's put the past behind her and she's marching towards progress. And she's very, very happy to share something with us, which she promised that she would share earlier. Now, what is that special thing she'd love to share with us? That we will get to know as the conversation goes ahead. मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया. यहाँ पर आपने फिर दोबारा हमारे साथ वक्त बिता रहे हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद. पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि पंपा आज के दिन अपने आप को कैसे वर्णन कर पाएगी. आज इतने सब कुछ हो गया, आप यहाँ तक आए हैं, तो आज के दिन, दैट इज 12 तारीख जनवरी 2025, पंपा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पापा के बारे में ऐसे क्यों जाने बहुत कुछ लाइफ में हुआ। 2017 के बाद में मेरा लाइफ बदल गया क्योंकि 2017 की बात में मेरे को बहुत कुछ सोचना मैंने सहना पड़ा। लेकिन आज ए 25 को आकर मैं बोल गया मैं अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया। मेरे को सीखने मिला, मैं सिखाने मिला, तो सब कुछ लेकर पंपा इज द फुल एनर्जी ऑफ 25 को फुल एनर्जी लेके आई हूँ। तो मैं तो सक्सेस हुई नहीं हुआ अभी तक, तो मैं तो बोलूँगी तो मैं सक्सेस हो ही सकता हूँ। लेकिन 25 को आकर मेरे को इस सुकून मिला जो मैं हाँ, जिस लोग ने जिस समाज ने मेरे को ठुकरा दिया था, उस समाज में मैं मेरा सर उठाकर बात करना सीख गया। ये मैं बोल सकती हूँ 25 में। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. पंपा जी, हम ये जानना चाहेंगे, अक्टूबर 23rd, 23 अक्टूबर 2017, जिस दिन आप एसिड अटैक का शिकार हो चुके थे, तब हाँ। आपका उम्र क्या थी? अ, उस साल मेरा उम्र था 25 25 या 25 नहीं, आज मेरा 30 हुआ तो 27 और 24 या 25 के बीच में। अच्छा, समथिंग लाइक 23, 24, 25 के बीच में हुआ होगा ना? यस, प्लीज. 24 प्लस था, 20. 20। हाँ। जी जी. तो जब ये हादसा हुआ आपके साथ, एसिड अटैक हादसा हुआ, तो दिन का कौन सा समय था वो? सुबह सुबह या दोपहर में, शाम में, कब? हाँ, सुबह ही था, मॉर्निंग में ही था, 10 या साढ़े 10 को, क्योंकि ऑफिस जाने के टाइम पे ही, हाँ, 10 या साढ़े 10 को।
ये हादसा कहाँ पर हुआ? घर पे हुआ या आप जब ऑफिस जा रहे थे तभी हुआ? ये हादसा हुआ था मेरा ससुराल पे। प्रियंका मैम, आपका नाम प्रियंका भी है और पंपा, आई मीन दोनों भी नाम से आप जाने जाते हैं। अब मैं एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैं मेरे तरफ से पूछना चाहूंगी मैं, जब एक औरत को मालूम हो जाती है या एक मर्द को भी, उनकी जिंदगी में कोई और आ चुके हैं, तो तब हम पीछे हट जाना, 10 कदम नहीं 1000 कदम दूर चले जाना, उनको जीने देना उनके साथ, तो वो मेरा मानना है, चाहे मर्द और औरत हो जो भी इस सिचुएशन में है, अगर आपके जो स्पाउस है समझो, या पति या पत्नी किसी और को चाहने लगे या किसी और उनके जिंदगी में आ चुके हैं, तो आप पीछे हट जाना, ये मैं मानती हूँ। तो आपने एक यहाँ से थोड़ा सा गलती करके आप उनको सुधारने का कोशिश कर रहे थे, शायद फिर वो लौट के आपके पास आ जाएंगे, आप साथ में रह सकोगे, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अगर आपने छूट कर चले गए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, राइट? और ये भी आपने कहा कि आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, राइट? यस डियर मैम, अभी हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे टॉपिक को, थोड़ा सा हल्का करेंगे सिचुएशन, क्योंकि वी आर ऑल लाइक वेरी इमोशनल इंक्लूडिंग मी लिसनिंग टू यू। मैम, अभी आप अपने खुद के फ्लैट खरीद चुके हैं और घर हाँ, प्रवेश शायद फरवरी में होगा, ये अगले महीना, हाँ, तो इसके बारे यस, में, इस सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। हाँ। मेरा जब मैं कोलकाता आया था मैम, इसमें भी मेरा ट्विस्ट भी है, कहानी भी बहुत मेरा माने जे मैं पंपा हूँ, पंपा की इस सक्सेस या पंपा की 27 से 25 तक इस जर्नी बहुत सी जर्नी है। 1 घंटा में नहीं होगा, लेकिन मैं घर मेरा गाँव में था, मेरा पास बाप का बाड़ी पिता का बाड़ी में था। तो वहाँ पे मैम मेरे को मेरा जो भाई था, मेरा दादा, मेरा 2 भाई है, मैं एक ही बहन हूँ। तो उस दादा को देखने के लिए एक लड़की लड़की की तरफ से आया था। तो एक लड़की की तरफ से आया था, मेरे को देखकर ना बोला, तुम्हारे घर में इस तरह की लड़की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लड़की नहीं देंगे। तो उस तरह मेरा परिवार भी मेरे ऊपर गलती किया था, क्योंकि मेरे को घर से निकाल दिया था। उस उसी टाइम मैंने सोच लिया, 2021 लॉकडाउन के बारे में मैं बताइए। उस टाइम सोचा कि मेरा ससुराल भी नहीं है, मेरा मायके भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को जीना है तो खुद लड़के फाइट करके मेरे को जीना है। इसलिए मैम कुछ नहीं सोचा, मैंने जो एक फाउंडेशन का पार्ट हूँ, आपको मैं बोला है ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, वहाँ पे एसिड सर्वाइवर लेकर काम करती हूँ। मैं डायरेक्ट वहाँ पे एक पेपर देखकर आई हूँ। तो वहाँ पे जो साइन मैम थी, अपराजिता मैम थी, उस मैम ने मेरे साथ मेरे को रहने के लिए 2 दिन के लिए एक जगह दिया था। फिर मैंने मैम मम के किया, जयनगर का जो मुआ होती है, ट्रेन में मुआ बेचती थी। तो बहुत कुछ किया। मेरे को कोई रहने का जगह नहीं था, मैं हॉस्पिटल में जाके रात कटाई, बहुत कुछ किया। लेकिन 2022 में मेरा एक जो फ्रेंड है मनीषा, तो उसके तरफ से एक चाकरी का ऑफर आया था, तो उसने बोला नहीं मेरे को नहीं करना है। तो उसी ऑफर आति जीवन फाउंडेशन से प्रोग्रा मैम उस मेरे को वो एनजीओ से नंबर लेकर मेरे को फ़ोन किया था। मेरे को बोला है तुमको काम करना चाहती हो? बोली हाँ मैम, मैं काम करना चाहती हूँ। ना तुम ब्यूटी एडवाइज़र का काम कर सकती हो? मुझे ब्यूटी एडवाइज़र का? हाँ, मेरे को जो काम देना है दीजिए, मैं कर सकती हूँ। मैम मैं 1 ईयर एक्सपीरियंस है ब्यूटी एडवाइजर का। जब मैं गया था उसका जो दुकान का मालिक था, मेरे को देखा एक ऐसा ब्यूटी एडवाइजर बनेगा, क्योंकि इसको तो रूप ही नहीं है। देखकर मेरे को हटा दिया। लेकिन मैं वहाँ पे 1 साल, उसने बोला ये 1 दिन भी नहीं टिकेंगे। मैंने 1 साल उसके हुआ टिके। तो मैंने किया, जॉय का जो प्लेटफ़ॉर्म था, जॉय का ऐड भी किया, जॉय वहाँ पे। वो सब थकते-थकते जॉय ने मेरे को किया,
जो बोला तुम्हारी रूप देखकर मैं तुमको काम नहीं दूँगी, तुम्हारी काम देखकर मैं तुमको काम पे रखूँगी। तो रख के ऐसा हुआ, मैं कंप्यूटर भी जानती हूँ, थोड़ा सब कुछ इंग्लिश भी आती है। आप इतना अच्छा भी नहीं आती है, लेकिन टुक-टुक काम करने के लिए चला आती है। तो ऐसे-ऐसे करके वो ई-कॉमर्स में मेरे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में मेरे को पैकेजिंग में दिया था। तो सब लड़के के साथ मैं पैकेजिंग में काम करते-करते ऐसे हुआ, सब लोग घंटा में 60 किया तो मैं घंटा में 100 किया। तो बोला ये लड़की तो बहुत अच्छे काम की लड़की है, चलो इसको ही रख देता है। तो वहाँ पे मेरे को हर्षिज ग्लोबल में रखा। फिर बोला तुम रिटर्न एंट्री कर सकते हो? हाँ, कर सकते। फिर रिटर्न एंट्री कर सकते थकते, फिर एक मैम है मेरा शुभ्रा मैम वहाँ पे है। तो शुभ्रा मैम बोला तुम हमारे साथ देखो तो कैसा काम कर सकते हो तुम? तो मैम तो ठीक है, मैंने बोला हाँ, मैं कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे जो आते हैं लोग, तो मैंने किया है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे-ऐसे करते 2023 में उस लोगों ने मेरे को परमानेंट स्टाफ बना दिया उसका। 1 साल में ही मैं वहाँ के परमानेंट स्टाफ बन गई। सब लोग बोल रहे हैं नहीं, इस लड़की को साथ होगा क्योंकि इस लड़की बहुत अच्छी है और वो काम कर सकती है। मेरे को न मैम रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं एक पीजी में रहता था, तो पीजी में वहाँ पे खाना-वाना कुछ नहीं देता है। मेरे को क्या काम दिया था, सुबह 11 से रात 9 बजे तक मेरे को काम करना पड़ता था, वहाँ पे। और मेरे को टाइम मिलता है आध घंटा, वहाँ पे होटल पे खा के मैम ऐसा हो गया मैं बहुत सॉरी बहुत खराब होती है क्योंकि मेरा गला तो खराब है यहाँ पे, गला में उस तरह पे कि खाना नहीं खाता। 2 दिन खाता तो 3 दिन नहीं खाता, ऐसे करके मैम मैंने इतनी सारी पैसा रुपया जमा किया है, एक घर खरीदने की माने घर खरीदने सॉरी, एक रूम रेंट में जे रह सकूँ इसलिए। तो ठीक है, मैंने जो सोचा वही किया। एक जो रूम पे हूँ, यहाँ पे ही मैं एक 3000 की एक रहती हूँ। फिर मेरा महीना ये सैलरी किया है 10,000, तभी इसका भी भरा हुआ 4000। मेरा सैलरी बहुत अच्छा नहीं है मैम, लेकिन मैं जो भी देता है वो हँसी मुँह लेकर मैं किसी को नहीं बताऊँ कि मेरे पास नहीं है। मैं वहाँ से थोड़ी छोटा-छोटा करके मेरा 10,000 है, 300 में यहाँ पे घर पे रूम रेंट देता हूँ, 6000 मेरे को जमाती हूँ, 1 2000 में मैं खाती हूँ क्योंकि मेरे को जब महीने में 2 बार चिकन खाऊँ, हर दिन चिकन खाना मेरे को नहीं होए। जितना पैसा है उतना ही से मेरे को चलना है। उतना नहीं चलूँगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। ऐसे-ऐसे करके मैम मैंने थोड़ी-थोड़ी जमा किया, फिर भी मेरे भी पहले भी थोड़ी-थोड़ी जमा करके मैम मेरे को जब 4 लाख रुपया हुआ, तो मैंने सोचा मेरे को अभी किसी अन्य की रूम में नहीं रहना चाहिए। मेरे को खुद का एक घर बनाना है, खुद का एक छत होना चाहिए क्योंकि मेरा जब वो छत हो जाएगी, तो मेरा माथा के ऊपर छत होती तो इस रुपया मैं लोन पे दे दूँगी तो वो घर मेरा हो जाएगी। ये घर मेरा कभी नहीं होगा। वही सोचा तो यही काम। तो ऐसे करके मैं अगले साल फ़ेब्रुअरी को ही मेरा जो फ्लैट है उसको मैं बुकिंग किया था। बुकिंग कर सकते ऐसा ही 4 साढ़े लाख 4 या 5 लाख भी मेरे को दिया हुआ। फिर मेरा 7 साढ़े 7 मेरा लोन हुआ है। तो लोन लिया हूँ और भगवान के तरफ से और आप लोगों का आशीर्वाद से मैं लोन से उतरा ही दूँगा और यही से ही चल रहा है और अभी भी मेरा जीवन यही से ही चलेगा। We've been trying to connect with our celebrity guest, that is Pampa Das. We've been trying and waiting for her for quite a few minutes, but she hasn't been able to rejoin because there is a network issue at her area. We'd love her to rejoin and share her journey with us in part 3 as well. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what the International Fab Talk team is doing, connecting with the right kind of people, the commoners, who are the main people who we need to know how they survive and how they live in this society, join us on this beautiful journey of creating awareness, communicating, and of course, networking and bonding for the right reasons. This is the International Fab Talk team working for the benefit of one and all. We are signing off now. Stay safe and stay connected. Love yourself and love your family as well.